A very good afternoon, dear colleagues. Uh, we welcome you to the fifth live conferencing session on Swayamparva Live. And we all are very much aware that this is the fifth batch of professional development program on national education policy. Colleagues, as we are very much aware that National Education Policy 2020 emphasizes upon multidisciplinary education, a lot of flexibilities to be given to learners, flexible teaching and learning transaction methods and curriculum, uh, uh, multi-lingual strategy for teaching and learning processes, and multiple entry and exit in different courses and different kinds of academic programs, and most importantly, creating academic bank of credits. And as I told you that it also talks about multilingualism, and it also advocates transaction of curriculum and adopting teaching learning strategies in different Indian languages, and most importantly mother languages. Um, National Education Policy clearly says that wherever possible, the medium of instruction until at least till the grade 5, but preferably till grade 8 and beyond, will be the home languages, will be in home languages, mother tongue, local languages, regional languages, and for the both public and private institutions. This is some sort of efforts which National Education Policy tries to make and convey to us that as a teacher, we are supposed to impart or the education or transact the curriculum in different Indian languages. And to talk further or discuss this topic, this very important topic in detail, we have today with us Professor Malati Mathur. Let me introduce Professor Malati Mathur to all of you. Professor Malati Mathur is presently Director, School of Foreign Languages, Indira Gandhi National Open University. And before that, she has been Director, School of Humanities. And she has also credit of setting of Center of Modern Indian Languages at the Indira Gandhi National Open Universities. Besides, Professor Mathur has been very much involved in different kind of literary activities, translation, and she has been visiting a lot of universities, especially she has been a member of Board of Studies and DRC at the Jamia Millia Islamia. She has been associated as a member of the Board of Studies at IIS University, Jaipur, and she has been also part of Management of Distance Education at Central Sanskrit University, New Delhi. And as far as her academic contributions are concerned, in terms of publications, she has 7 books to her credit, and she has presented about 40 research papers in different national and international seminars and conferences, and she has been also awarded with British Council Katha Awards for translation from Tamil and Hindi into English. So with this brief introduction, I would hand over the session to Professor Mathur. Thank you, Dr. Asgar. That was a very generous introduction indeed, and also a very comprehensive introduction to what the National Education Policy of 2020 says about the mother tongues and about our regional languages. Now, as Dr. Asgar has just mentioned, the National Education Policy of 2020 is very, very clear about the mandate that has been handed down to educational institutions, and they emphasize that the use of the mother tongue should be primary in the teaching and learning situation. And as he has again already mentioned, the policy says that at least till the 5th grade, the medium of instruction should be the mother tongue, and if possible, it should continue up to the 8th grade.
And very recently, we've seen how books of even the MBBS course have been translated into Hindi, and they have been put on offer in the country. And this is a kind of a step towards reclaiming our languages, our legacies, our own culture. Because there is no way, two ways about it. Language cannot be separated from our culture. It cannot be separated from our literature. So when we try to take someone away from their mother tongue, we are in fact isolating them and removing all traces of their own culture. So because linguistically, culture traces itself through language, through literature, the way we communicate with each other. So the national education policy, in its emphasis on the mother tongue in the teaching learning situation, has made it very clear that this kind of a division we should try to obliterate it as far as possible. When we talk about languages, as I said, we also talk about Indian art and culture. And the NEP 2020 talks about language, the mother tongue, in this very context. And they say that we should talk about Indian art, culture, and language because that is the medium in which the creative spirit can be awakened. And it also believes that until and unless we bring in the mother tongue into the curriculum, we will not be able to impart understanding. We will not be able to impart a comprehensive education to the child. And as a professor of English, I would like to share an experience of my own. My own mother tongue is Tamil, and I have been teaching English in states which have predominantly Hindi as their own mother tongue. And initially, I did face a lot of problems because I felt that English should be taught only in English. और पहले ये बात ज़रूर कही जाती थी, सारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे वो कहते थे कि जब तक आप उस लैंग्वेज में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपको वो भाषा नहीं आ सकती. तो एक तरह से पूरी तरह से वर्जित किया हुआ था कि क्लासरूम के अंदर जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप किसी भी मदर टंग हिंदी का तो बिल्कुल हरगिज़ प्रयोग नहीं करेंगे. तो शुरुआत में क्योंकि मैं खुद भी हिंदी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती थी, नहीं जानती थी, तो मेरा यही होता था कि मैं 45 मिनट में इंग्लिश में पढ़ा के मैं निकल जाती थी और मुझे महसूस होता था मेरे स्टूडेंट्स के चेहरे को देखकर कि वो कुछ भी नहीं समझ पाए या बहुत कम समझ पाए हैं. And then I started realizing that I need to change my strategy. अगर मैं 45 मिनट में बोल के आ गई, मैं अपने आप को खुश कर सकती हूँ कि हाँ जी मैंने ये सिलेबस में आज ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया. लेकिन अगर वो मेरी बात अगर छात्राओं तक नहीं पहुँच पा रही है तो मेरा वो जो मकसद है वो तो पूरा ही नहीं हुआ. मैं वहाँ बस बोल कर आई हूँ, तो जहाँ पहुँचनी चाहिए बात वो नहीं पहुँची है. So then I slowly, I think by trying to teach English in a way that students can understand, I myself started learning Hindi as well. So it became a two-way process और English पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद हिंदी सीख गई. तो और इसमें एक और बात भी थी. मैंने एक बार एक हमारे ब्रिटिश काउंसिल के एक टीचिंग ऑफ लिटरेचर के एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ये गुस्ताखी की कि मैंने कहा कि नहीं जी हम मदर टंग को यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ाते वक्त, और बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे से झगड़ा करने लग गए थे. और लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली महसूस किया मैंने वही जाहिर किया. और ये बात मैंने ज़रूर देखा कि स्टूडेंट्स कई बार क्योंकि वो नहीं जानते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, अंग्रेज़ी से एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है हमारा, तो वो ये समझते थे कि अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो हमारी इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स. सो दे वुड हेजिटेट, they would not speak in English because they felt that they would make mistakes. But then I would say, देखिए मैं हिंदी नहीं जानती, मैं हिंदी बोल रही हूँ और मैं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ, तो आप मुझे हिंदी सिखाइए, आप मेरी गलतियों को सुधारिए और मैं आपके इंग्लिश को मैं सुधारती हूँ. So this became a kind of a deal between us. It became a bargain कि मैं आपकी गलतियाँ सुधारूंगी, आप मेरी गलतियाँ सुधारिए. मेरे को शर्म नहीं आ रही क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ. So I felt that this kind of an approach made my students more open to learning, more open to making mistakes and learning from the mistakes, and in overcoming their hesitation, their reluctance to actually trying to communicate in English.
So this was something that I felt myself, that the use of the mother tongue in many ways helps understanding, helps make the atmosphere in the classroom so much more relaxed, so much more, I think, conducive to the way students approach learning. Swami Vivekananda had something very, very important to say about language, about the mother tongues. And as I have mentioned earlier, language is not just communication. It is an indicator. It shows your identity. It gives you an identity. It gives you a personal, a social, and a cultural identity. And every language has its own culture. It is like music. हर राग की एक माहौल हो जाता है, जैसे कि आप राग गाते हैं या बजाते हैं, उसका एक माहौल होता है। तो उसी प्रकार से हर भाषा का एक होता है माहौल। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, आपकी संस्कृति जुड़ी हुई होती है। आप जब अपने भाषा में बात करते हैं, आपके उसके साथ कई यादें जुड़ी हुई होती हैं। यू रिमेंबर द वे योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टेल यू स्टोरीज इन दैट लैंग्वेज। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर interlinked, and that is why the use of the mother tongue is so very important for us. And I'd like to quote Swami Vivekananda, who said that the language is the chief means and index of a nation. And in India, we are so blessed that we have such a huge array of languages and dialects. और अभी मैं कई बार देखती हूँ, जैसे भोजपुरी जैसे एक भाषा है, जो पुरानी पीढ़ी है वो तो बोलते हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी हिंदी की तरफ आती जा रही है। वो उनको लगता है कि हम अगर हमारी जो डायलेक्ट है हम उसमें बात करेंगे तो हमें देखा जाएगा कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसी तरह से जैसे मारवाड़ी है, मैं देखती हूँ राजस्थान में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ उनके जो पोते पोती हैं वो मारवाड़ी में बात कर लेते हैं, लेकिन आपस में नहीं बात करते। आपस में दे स्पीक आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। सो अगेन इट इज़ अ मार्कर ऑफ सोशल मोबिलिटी। दे फील कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे कि हम गांव से उठकर आ गए हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, हम शहरों के नहीं हैं, या हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सो ये बात जो एक रिलक्टेंस है, दिस काइंड ऑफ हेजिटेशन टू यूज योर ओन डायलेक्ट, योर ओन लैंग्वेज, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू ओवरकम, एंड दैट इज व्हाई आई वेलकम दिस इनिशिएटिव ऑफ द NEP 2020 in which they are trying to give the kind of importance to the mother tongue that it deserves, because as I keep saying, it has to do a lot with our own culture. So why do we need the mother tongue? As I said, if we bring the mother tongue into the curriculum, there is better understanding. And जो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आजकल ग्लोबल विलेज हो गया है, स्पेशली ऑनलाइन। अब कोविड के बाद हम लोग ऑनलाइन हम लोग जो मीटिंग्स करते हैं, इतने लोग जुड़ते हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़ते हैं। तो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस भी इसलिए हो गया है कि हम घरों में बैठ के हम नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फर्म हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। तो एक मार्केट प्लेस के अंदर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, आप जितनी भाषाएं जानते हैं, आपके लिए एक एडवांटेज हो गया है। सो द मोर लैंग्वेजेस यू नो, the better placed you are in the marketplace, the better placed you are to project yourself as a very likely candidate, as a suitable candidate for various jobs. And we find that international institutions, a number of universities internationally all over the world, are very actively and very intensively establishing centers, establishing programs, study programs, establishing disciplines which integrate the mother tongue. So this is not just India, it's happening all over the world because everyone is now realizing the importance of the mother tongue. मैम, जैसा कि आपने अभी जो जितनी ज़्यादा जिसको भाषाएं आती हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि 2021 का जो सेंसस है, 2021 के सेंसस के मुताबिक हमारे यहाँ भारत में 121 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। जी 121 जी, और वो उसके अतिरिक्त हैं जो 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसके अलावा है। और एक चीज़ और आप को ये बता दें कि जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हुई, तो आज जो जॉब मार्केट है भाषा के क्षेत्र में, खासतौर से विदेशी भाषाओं के जानने वाले
जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई हैं वो इसलिए आई हैं कि यहाँ उनको मल्टीलिंगुअल्स जो एक्सपर्ट्स हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, लिंग्विस्ट्स हैं, वो उनको आसानी से मिल रहे हैं। तो एक रोज़गार का मौका भी जो है, जो जितने ज़्यादा भाषाएं जिनको आ रही हैं, खासतौर से विदेशी भाषाएं जिनको आ रही हैं, उनको एक काम करने का मौका, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो भाषा कभी भी जो है जितनी आपके अंदर जो है विभिन्नताएं हैं आपके अंदर भाषा के तौर पर हैं, वो समझिए कि हमारा एक मजबूत पहलू है, एक एजुकेशन है, एजुकेशन है, स्ट्रेंथ है, जिससे हमें अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है और रोजगार के मौके भी हमें मिल रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जितनी भी अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भाषाओं पे काम कर रही हैं, उन्होंने अपना बैक ऑफिस या ऑपरेशनल जो प्रोसेसिंग उनका यूनिट है, उन्होंने भारत में सेटअप किया हुआ है। तो एक तरह से जैसे कि मैम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी एक मजबूती है। जी बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं हमारे पास, तो हम लोग ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो तो एक से ज़्यादा तो जानते ही हैं भाषा। बिल्कुल। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो सिर्फ एक ही भाषा जानता हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो और दूसरे कल्चर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, तो वी बिकम मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर, क्योंकि हम फिर समझ पाते हैं कि सब एक जैसा नहीं है और एक जैसे होने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो हम लोगों के अंदर ये जो टॉलरेंस वाली भावना आती है, तो वो बहुत ही अच्छा है, माहौल एक अच्छा हो जाता है। और हमारे लिए, क्योंकि हम पहले से 2-3 भाषाओं को हम जानते हैं, हमारे लिए और भाषाएं सीखने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। और शायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसी बात की तरफ इंगित करता है कि जब हमारे पास भाषाओं का इतना भंडार है, तो हम क्यों ना उन भाषाओं में अपने बच्चों को बिल्कुल जो उनकी बुनियादी तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है और इवन हायर एजुकेशन है, वो दें। और कम से कम कई सारी भाषाओं में तो बाइलिंगुअल तो हम हो ही सकते हैं। बाइलिंगुअल तो हम हैं ही, बिल्कुल है। हम बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल हैं कई बार, बिल्कुल है ना। और स्पेशली अब जैसे कई लोग इंटर स्टेट मैरिजेस जब हो जाते हैं, जिनके हस्बैंड स्पीक्स वन लैंग्वेज एंड द वाइफ स्पीक्स अनदर लैंग्वेज, सो जो बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं तो सीखते ही हैं। उसके अलावा अगर वो किसी और स्टेट में है तो वहाँ वाली भाषा भी सीख जाते हैं, इंग्लिश भी सीख जाते हैं। तो कम से कम 4-5 भाषाएं तो बहुत आसानी से बोल लेते हैं वो लोग। और आई थिंक इन आवर जेनेटिक मेकअप we are able to grasp and learn new languages more easily because we are exposed to so many languages on a day-to-day basis. So that is something that we should preserve, and that is something that we should value. कि हमारे पास ये एक धरोहर है, जैसे क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि इतनी भाषाएं हैं, वो कई तो लुप्त होती जा रही हैं, तो उसको हमें संजो के कैसे हम रखें, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो शिक्षा नीति है, ये इसकी तरफ एक कदम भी है कि अगर आपके स्कूल्स में आपकी भाषा में पढ़ाया जा रहा है तो वो लुप्त नहीं हो सकता फिर। जी, क्योंकि जो कोई भी देश तरक्की कर रहा है, आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज को ले लें, चाइना को एक एग्जांपल जी बिल्कुल, उसके जितने भी ऑफिशियल्स कार्य हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, सब मैंडारिन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हमारी तो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली और तो हम बहुत ही, हमारा सोसाइटी बहुत ही प्लुरलिस्टिक है। एब्सोल्युटली। तो इन चीज़ों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो अगर हम शिक्षा नीति का जो प्रयास हो रहा है, अगर हम उस पर पालन करें अक्षरता, तो जाहिर सी बात है कि हम और आगे इस दिशा में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जी मैडम। तो अब हम आते हैं इग्नू की तरफ, क्योंकि अब ये शिक्षा नीति के जो संदर्भ में हम जो बात करते हैं, तो हम क्योंकि हम इग्नू में हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया है जो हमारी जो मातृभाषाएं हैं उसको हम आगे ले जाने में, टू प्रिजर्व देम, टू डेवलप देम, टू ब्रिंग देम क्लोजर टू द स्टूडेंट्स, व्हाट हैज़ इग्नू डन? So we have designed and developed a number of programs and courses जिसके अंदर ये मदर टंग वाली जो एक जो धारणा है, वो बिल्कुल उसकी, जो मैं कहूँ तो उसका दिल है वो, कि हम मदर टंग को ही लेकर हम आगे बढ़े हैं। मदर टंग के बारे में सोचते हुए हमने उसके इर्द गिर्द ही कई कोर्सेज को हमने बनाया है। तो कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो they belong to the Indian diaspora. For instance, we have the Girmitia, the descendants of the Girmitia who have gone to countries like the West Indies, to Mauritius, to Fiji. तो उनमें से कई ऐसे हैं जो भोजपुरी भाषा, उनके जो पूर्वज थे वो भोजपुरी बोलते थे। तो
अब धीरे धीरे उनमें वापस से वो एक तरह की एक जागृति हो रही है कि हम जो हमारे जो पूर्वज जो बोलते थे, हम उससे वापस हम अपने जड़ों की तरफ हम लौटें। तो वो वाली बात तो हो नहीं सकती कि आप वापस अपने देश को लौट जाएं, लेकिन आप अपने भाषा के ज़रिए आप एक तरह से एक कनेक्शन आप ढूंढते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने कई ऐसी मातृभाषाएं हैं जो वो कोर्सेज हैं हमने डेवलप किया है, जो ये इस तरह के जो छात्र छात्राएं हैं वो इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज एंड दे कैन रीडिस्कवर एंड रिकनेक्ट with their roots. For instance, we, like I said, we have Bhojpuri. We also have Tamil, which the diasporic, say, people in Malaysia, in Singapore, they can connect to that and they can opt for these kind of programs and courses. We also have, like I said, we have students of Indian origin from Guyana. इग्नू ने एक्चुअली एक MOU साइन किया हुआ है गयाना के साथ, विद द गवर्नमेंट ऑफ गयाना, और उसके तहत हम लोग कई ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर मातृभाषा भी है. एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट from the West Indies as well. We have people coming here and saying आप इस तरह के हमें कोर्स दीजिए जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो अपने मातृभाषा को दोबारा से सीख पाएँ या दोबारा से जुड़ पाएँ. अब इग्नू ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसी क्या खासियत है इग्नू में? द वन थिंग ऑफ कोर्स इज इट्स द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. सो इट इज़ नॉट लाइक अ कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी जिसमें जो बच्चे क्लासरूम में आगे वो पढ़ के चले गए, बस बहुत सीमित सी हो जाती है बात. IGNOU, because of its ODL system, distance education, and now because we have made more and more of our programs go online, जिस तरह से आज आपसे बातचीत हो रही है, इस तरह से हम लोग कई प्रोग्राम्स हमने ऑफर किया है जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, कई तरह के ऑडियो विजुअल एड्स के साथ हम लोग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. तो IGNOU has this capability of offering this kind of programs, and in many disciplines and in many languages. We have trained faculty to do this, and we have studios, we have the e-resources, and our electronic media and production center has got absolutely state-of-the-art studios and cameras and trained people who not only can record but also edit and then present it to the students. We also have a large number of regional and study centers with very experienced people all around the world. हमारे overseas centers भी हैं. And what is IGNOU doing? हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हम लोग एक तरह से we are acting as cultural ambassadors for our own country. Because हमारा जो what I call the raison d'être, which is why do we exist? Why does IGNOU exist? The primary focus, of course, is to provide education and to all, even in the remote areas of our country. And our motto is reach the unreached. So ऐसे लोग दूर दराज इलाकों में बैठे हैं. हमारे बहुत सारे सैनिक बंधु हैं आर्म्ड फोर्सेस में जो बहुत दूर ऐसे जगहों में वो लोग स्टेशनड हैं जहाँ उनके पास एजुकेशन की कोई रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने पढ़ाई को जारी रखें. तो ऐसे लोगों को हम लोग अपना स्टडी प्रोग्राम्स हम पहुँचाते हैं. वी ट्राई टू गिव देम व्हाट दे रिक्वायर, and we try to tailor our programs and courses according to the requirements of the students, according to the requirements of the marketplace, the job market, according to what they need when they go out into the world. For example, a large number of Indians have gone to the Middle East for their jobs. So hum log IGNOU has also started programs in Arabic. So we try to look at the needs of the students. So what have we done as far as mother tongues are concerned? We have an elective basket of bhashas, जो BA general program जो है हमारा, उसमें फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 18 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का एक बास्केट दिया है. ऑप्शंस हैं, तो उन 18 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा कंपल्सरी है. सो द स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द
द लैंग्वेजेस। और हमने इस साल से 3 नए जो हैं, जुलाई से हमने शुरुआत की है, मणिपुरी, नेपाली और कश्मीरी। तो ये ऐसी भाषाएं हैं जिनके जो लोग जिन इलाकों में रहते हैं, they felt that they are not part of mainstream India. So by developing these courses in their own languages, we in IGNOU are trying to make them feel that we are all one family, that we may be speaking different languages but we are all together. So ये जो courses हैं, ये 6 credit courses हैं, compulsory है जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर में। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या बताने की कोशिश करते हैं इस 6 क्रेडिट कोर्स के अंदर उस भाषा के बारे में, उसका इतिहास, कैसे शुरुआत हुई उस भाषा की, उसका जो उसके साथ जो संस्कृति जुड़ी हुई है, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें किस तरह के लोग, क्या लेखन चल रहा है, आज क्या ट्रेंड्स हैं, और किस तरह से उसमें जैसे द वेरियस जॉनर्स ऑफ राइटिंग, पोएट्री, autobiographies, travelogues, letters, novels, plays, so all kinds of things, short stories. So we try to introduce the student to various types of writing, so that in their own language, so that they are able to trace their culture, they are able to trace the origin and development and history of their own language and literature. We also talk about the grammar of that language. We talk about the structure, the vocabulary, and if possible, we also bring in the pronunciation. So today the admissions are still going on. So this figure that I'm giving you is for the January 2022 cycle. There were 7,202 students who enrolled in the various language courses in July 2021, and in January 2022, there were 2,647. And for the December 2021 term end exams, just in modern Indian languages, there were 2,081 students who sat for the exam. Now, what are the modern Indian language courses that are on offer? We have Assamese, Bengali, Bhojpuri, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Nepali, Kashmiri, and Manipuri. Now, this is a collage of the covers of those courses that I have just mentioned. And as you can see, they are all very colorful. And we have tried to incorporate elements from that particular state in which that language is spoken. So it can be either the landscape, it can be the map of that particular state, it can also be the pictures of prominent writers and thinkers in that language who have made a mark in that particular language. So we have tried to bring it all together for the student, something to read about and something to feel proud about, that this is what my language has achieved. मैम, मैं इस स्लाइड की तरफ जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जी, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मातृभाषाओं में शिक्षण और शिक्षा, पढ़ना पढ़ाना कैसे मातृभाषाओं में हम कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे, हम उसका चैप्टर्स में जाएंगे, तो जहाँ पे मातृभाषा की बात हुई और उसका जो हेडिंग है, चैप्टर का हेडिंग है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर जी। तो ये कवर पेजेस अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक रिफ्लेक्शन है आर्ट का भी, कल्चर का भी और लैंग्वेज का भी जी। तो एक अच्छा ही, बहुत ही एक समावेशी एक अप्रोच ध्यान में रखते हुए ही ये तमाम कवर्स पेज लगता है तैयार किए गए हैं जी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल, बिल्कुल दर्शाते हैं हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट्स को, लैंग्वेज को। ये मैं ये भी बता दूं कि ये जो कवर पेजेस हैं, ये हमारे यहाँ जो MPDD में तमोल जी हैं, उनके साथ मिलके मैंने इनको डिज़ाइन किया। और हम लोग इस बार बार इसको देखते थे, और मैं कहती थी कि
ऐसे, और फिर हम लोग गूगल पे जाके और जो कॉपीराइट फ्री जो पिक्चर्स हैं किसी स्टेट के, हम उनको निकालते थे कि कैसे, और फिर कलर्स भी उनका सही होना चाहिए, ऐसे नहीं है बहुत क्लैश ऑफ कलर्स हों। और मैं ये कहती थी कि भाई कवर देख के कोई भी ये देख ले कि हाँ इस लैंग्वेज की ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे इसमें। अब जैसे एक का ही उदाहरण ले लो, जैसे कश्मीर का उदाहरण ले लो, उसमें मैप भी आ गया है, और उसमें जैसे जो हाउस बोट्स होते हैं वो आ गया, संतूर है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो आ गया है, और चाय के लिए भी जाना जाता है वहाँ एक जिस तरह से एक सामोवार होता है जिसमें चाय परोसी जाती है, वो आ गया, और एक महिला आ गई जो उस वेशभूषा में है। तो एक तरह का आपने जैसे कहा समावेश हो गया है उसमें। और असमीज में भी देखिए वो चाय की पत्ती है, और जो वो एक नीचे बॉर्डर है जो असमीज वीविंग है, और वो असमीज एक जो केन का जो काम का है वो, तो इस तरह के तमोल, और मैंने बहुत इसमें बहुत बारीकी से हमने इसको स्टडी करके, और हमने कहा कि ये चीज़ें उसमें आना ज़रूरी है। जी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, कल्चर, इतिहास, जी, ये तो अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है कि हम अपनी भाषाओं के जब लर्निंग मटेरियल्स तैयार करें, जी, किसी भी भाषा का हो, MIL में 18 मैडम कह रही कि इग्नू में जो सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जी, उसमें 18 भाषाओं का एक बास्केट तैयार किया गया है। तो आप अपने इदारों में, अपने संस्थानों में इस तरह के प्रयास आप कर सकते हैं कि जो वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं उसका एक बास्केट आप तैयार करके अपने छात्रों को परोस सकते हैं। आप इसमें से कोई भी भाषा चूज करें, आपकी अपनी भाषा है। हाँ, ये जरूर, हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैडम बार बार मैथिली भाषा का या भोजपुरी भाषा का जिक्र कर रही हैं, तो मैं एक बिहार का एक उदाहरण आपके साथ प्रस्तुत करूं कि बिहार में ही एक छोटे से राज्य में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अवधी है ना, फिर अंगिया है, मतलब कई सारी भाषाएं हैं और बोलियां हैं विभिन्न प्रकार की। तो अगर, और दरभंगा में कोई और भाषा बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में कोई और बोलते हैं, आप गंगा पार उस साइड पश्चिम की तरफ चले जाए, पटना की तरफ, वहाँ की और भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक छोटे से राज्य में इस तरह की विभिन्नताएं हैं। तो एक भारत की परिकल्पना कीजिए कि हमारी कितनी विभिन्नताएं होंगी। तो अपने अपने क्षेत्र के मुताबिक अगर हम इस तरह के बास्केट तैयार करें, जैसा कि मैडम ने अभी उदाहरण दिया कि MIL का, इग्नू का जो सेंटर है उसमें 18 भाषाओं का बास्केट तैयार हुआ है, तो आप भी अपनी शिक्षण संस्थाओं में वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं उसका बास्केट तैयार करें और छात्रों को परोसें। बिल्कुल छात्र इसको पसंद करेंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक विजन है, एक सोचने का एक नज़रिया है, उस नज़रिए को भी आप फुलफिल करते हुए दिखाई देंगे अगर ये प्रयास करेंगे तो। जी जी। सो अभी सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, तो ये हमने मानवी की विद्यापीठ में इसको हमने बसाया इसको, मैं कहूँ तो, और इसके अंतर्गत हमने कई वेबिनार्स किए हैं। हमारा यही मकसद था कि अलग अलग मातृभाषाओं में जो लिख रहे हैं उसके बारे में बातचीत की जाए, ट्रांसलेशन के बारे में बातचीत की जाए, इवन सिनेमा के बारे में। जैसे एक सज्जन आए थे, उन्होंने सत्यजीत राय के जो फिल्में हैं, बंगाली फिल्म, उसमें सामाजिकता के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह के किसी भी तरह का जो एनी आर्ट फॉर्म, वेदर इट इज़ राइटिंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक और सिनेमा, वी ट्राई टू ब्रिंग दैट टू आवर लर्नर्स। सो एक वेबिनार में हमने 2 लोगों को बुलाया था, एक जो प्ले राइट हैं वो जो नाट्य मंचन करते हैं, और एक जो डांसर हैं। और हमने कहा कि जो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसका आप बताइए कि मंचन में हम लोग थियोरी में ज़रूर पढ़ते हैं, बच्चे क्लास में बैठ के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में थियोरी में पढ़ते हैं, लेकिन जो क्रियान्वित होता है, what is the practical use and implementation of Bharat Muni's Natya Shastra on the stage, in dance and in drama, that is something that we really do not talk about. So we got these 2 people who talked about this. So various things like this. And then also I invited 2 or 3 people to talk about how Krishna is portrayed in various languages.
सो तमिल पोइट्री में कैसे और हिंदी में कैसे, इस तरह की हमने बातचीत की। तो एक तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई जो एक एक्सपोजर मिलता है टू फॉर वेरियस लैंग्वेजेस। आई थिंक वी ट्राई टू डू दिस। सिनेमा की बात की जी तो एक भाषा को सिखाने के लिए जी एक जो नाट्य शास्त्र, ड्रामा या फिल्म है, एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। एब्सोल्युटली। तो हमारे शिक्षक बंधुगण ये भी कर सकते हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं विशेष तौर से, या इवन हायर एजुकेशन सेक्टर में हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं, और उनको भाषा की तरफ बच्चों को आकर्षित करना है। जी। तो आपने सत्यजीत रे की का जिक्र किया, उन्होंने बंगालीज में कितनी क्लासिकल अच्छी अच्छी मूवीज बनी है। तो सिर्फ बंगाली ही नहीं बल्कि भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, जो पुरानी फिल्में बनी हुई हैं उस प्योर भाषा में, जो वहाँ की बिल्कुल मातृभाषा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो उस तरह की फिल्मों का आप चुनाव करें और उन फिल्मों का एक शेड्यूल तैयार करें कि आज मराठी लैंग्वेज की मूवी दिखाई जाएगी, आज जो है तमिल की भाषा की मूवी दिखाई जाएगी, कल भोजपुरी में दिखाई जाएगी, क्योंकि भोजपुरी में फिल्म बन रही बहुत सारी, कन्नड़ मूवी बने दिखाई जाएंगी। तो इस तरह से भी बच्चों में एक जागरूकता पैदा होती है विभिन्न भाषाओं के सीखने का। मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी में 2 तरह के फेस्टिवल होते थे, फिल्म फेस्टिवल। एक होता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और एक होता था नेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जब इंटरनेशनल में तो जो फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में, जापानीज में, अरबिक में, पर्शियन में, इस लैंग्वेज की फिल्में दिखाई जाती थी। और जो नेशनल होते थे वहाँ रीजनल लैंग्वेज की मूवी दिखाई जाती थी। तमिल की जो जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं या क्लासिकल मूवी कंसिडर की जाती है, ताकि वो आपसे भाषा ना सीखे बल्कि जो एक क्लासिकल अप्रोच है, और मूवी क्यों क्लासिक बनी वो है ना, और एक सामाजिक परिवेश क्या था उसका, हमारा पुराना कल्चर क्या था, हमारी तहजीब क्या थी, हमारी विरासत क्या थी, कस्टम्स क्या थे। तो उस फिल्म के माध्यम से सिर्फ भाषा पे ही हमारी समझ नहीं विकसित होती थी, बल्कि उसकी हमारी हिस्ट्री, कल्चर, तहजीब है, उसको भी समझने का मौका मिलता था। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने शिक्षक बंधुगण से ये आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको अपने अपने शिक्षण संस्थानों में हम शुरू कर सकते हैं एज शिक्षक, ताकि हम भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, अपने कॉलेज में, peer groups and it is में, also more interesting to watch a film. Yes. And instead of listening to a lecture, so when you're watching a film, there is so much more that appeals. It appeals to your senses in so many ways. There is music, there are dialogues, yes, so it's it makes it much more interesting. जी। So जो मुख्य भाषाएं हैं, एक तो संस्कृत तो है ही. It was offered at bachelor's, master's and PhD levels. We also have certificate and diploma programs. We are also launching it online. And बहुत सारे programs हैं. सरल संस्कृत बोध है, कम्युनिकेटिव संस्कृत है जो ट्राइलिंगुअल है, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत. वैदिक गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, भारतीय कालगणना, संस्कृत में विज्ञान और वैदिक स्टडीज. सो ऑल दिस जो हमारे जो NEP 2020 है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, आवर एंशियंट नॉलेज सिस्टम. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, दे वेरी डायरेक्टली रिलेट टू आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम. इन उर्दू में कहते हैं, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा. So it is a completely Indian language. यही पैदाइश है उसकी उर्दू की. And again we have courses at all levels: certificate, diploma, bachelor's, master's and PhD. And certificate and जो diploma courses हैं वो हमने online में भी हमने उसको launch कर दिया है. और अब हम एक और MA program in उर्दू हम लोग develop कर रहे हैं. और मैं ये एक जानकारी दे दूँ, अब हम MA in Sindhi studies भी हम लोग बहुत जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं. वी आर डेवलपिंग एन MA इन सिंधी स्टडीज. मैडम, आपने उर्दू का जिक्र किया जी. तो उर्दू एक ऐसी जुबान है जी जो एक हमारी एक विरासत है, साझी विरासत की निशानदेही है ना. एक गंगा जमनी तहजीब जो हमारा हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है, एक पहचान है, उसको रिफ्लेक्शन को जुबान करती है तो वो उर्दू करती है जी. और उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं. हाँ, माँ एक है और ये उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, और दोनों एक खास
कॉन्टेक्स्ट में, एक खास बैकग्राउंड में, एक खास सिचुएशन में पैदा हुई हैं और ऐसे माहौल में पैदा हुई है जब हमारी एक बिल्कुल एक मिली जुली तहजीब, एक विरासत है ना। और यही वजह है कि और इस चीज़ को हम चेरिश नहीं करते हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं तो उर्दू को कितना सराहा जाता है। अब हम लोग जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आपस में जो हम बातचीत करते हैं, उसमें से अगर आप उर्दू शब्द हटा दें तो शायद हम लोग बातचीत ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे इसके अंदर इतना घुल मिल गया है कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम हमारे वो it just comes automatically to us. और आप मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे जी, तो आप बहुत सारे ऐसे लोग उर्दू के जानकार मिलेंगे जी, आपको, जी, बिल्कुल, जो हमसे अच्छा तलफ़ुज़ कभी कभी उनकी होती है उर्दू में, जी, है ना। और वो उस चीज़ को बहुत फख्र से हमारे साथ आते हैं। तो अगर हम लोग इनिशिएट करते हैं इंग्लिश में बात करना तो कहते हैं नो नो नो, आप बराए मेहरबानी मुझसे उर्दू में बात करिए। मुझे भी थोड़ी बहुत उर्दू आती है। हमारे एमए उर्दू का जो हमने लॉन्च किया था प्रोग्राम, उसमें हमारे वन ऑफ द पीपल हु लॉन्च्ड इट वाज नॉट फ्रॉम इंडिया एंड शी स्पोक सच वंडरफुल उर्दू दैट हमें शर्म आ रही थी कि ये इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं उसको। इट्स बेसिकली अ रिस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज नो मैटर व्हाट। सो हिंदी ऑफ कोर्स वी हैव ऑफर्ड from the very beginning, bachelor's, master's and PhD, and जो MA in हिंदी है वो भी हम ऑनलाइन ले गए हैं। एक MA in व्यावसायिक लेखन भी ऑनलाइन है, अभी हमने ऑफर कर दिया है। English programs also, now English is also an Indian language, so जैसे अब कहते हैं there are Englishes, so there's an Indian English, there is a West Indian English, so there are Englishes which are spoken all over the world, जिसको हमने अपना बना लिया है उसको। तो जिस तरह की इंग्लिश हम बोलते हैं वो शायद कहीं यूके में नहीं बोलते होंगे, वो हमारी बोली है, हमारी अंग्रेज़ी है वो। सो इसमें भी हम लोगों के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, MA इंग्लिश हमने ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है। और इसके अंदर हमारे टेक्स्ट्स हैं वो इंडियन राइटर्स के लिखे हुए भी हैं और हमने ट्रांसलेशंस भी लिए हुए हैं फ्रॉम इंडियन क्लासिक्स। सो कुछ ये एनरोलमेंट फिगर्स मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये अक्टूबर 2022 तक के हैं। तो मलयालम भी ऑनलाइन है, ये 1521 स्टूडेंट्स, एंड मलयालम ODL 1177, मराठी 187, ओडिया 441, पंजाबी 1011, तमिल 81, तेलुगु 143, हिंदी 43,865, संस्कृत 638, असमीज 256, Bengali 850, Bhojpuri 61, Urdu 2689, Gujarati 151, Kannada 302, Kashmiri 66, Nepali 53 and Manipuri 18. Now let me remind you that Kashmiri, Nepali and Manipuri have been on offer only from July 2022, and I'm sure that by now the numbers have also gone up. And I had already spoken about this. 2081 students applied for the term and exams in the regional languages. And we also have live sessions on channel 17, 18, 19 and 20 on Swayam Prabha. And इसमें हम सिर्फ भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग डिसिप्लिन्स में, मातृभाषाओं में हम लोग लेक्चर्स दे रहे हैं, जैसे कि सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ में तो है ही, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, टीचर एजुकेशन वगैरह में भी हम लोग अलग अलग भाषाओं में हम लेक्चर्स प्रदान कर रहे हैं। एंड चैनल 17 में जो हम लोग हमारे लेक्चर्स आते हैं वो ज्ञान दर्शन पे भी टेलीकास्ट होता है, और हमारे सारे जो लाइव सेशंस हैं वो यूट्यूब पे स्ट्रीम होते हैं। और यहाँ मुझे इस बात से याद आया कि जो मैंने सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के वेबिनार्स का जो मैंने जिक्र किया, वो सारे ही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। जैसे एक जो मैंने नाट्यशास्त्र की बात की, सत्यजीत राय की बात की, एक हमने किया था द गज़ल इन 6 इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये इसको ऑर्गेनाइज करते वक्त मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे भी मालूम हुआ कि संस्कृत में भी गज़ल लिखी जा रही है। तो 6 इंडियन लैंग्वेजेस में जो गज़ल लिखी जा रही है उसके बारे में हमारे पास विद्वान आए, उन्होंने बातचीत की। तो ये सारे जो सेशंस हैं वो सारे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ CMIL देख के सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ये सारे। और ये जो
एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक स्कीम है हमारे the government of India has started this where they have paired different states. तो ये जो मैप है इसमें जो अलग अलग रंग हैं तो आप देखिए कि दो सिमिलर जो कलर्स जो हैं उन स्टेट्स को पेयर किया है ताकि इस स्टेट और उस स्टेट के जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे की जानकारी ले सकें, एक दूसरे की भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में. So what is the intention behind Ek Bharat Shresth Bharat? It is you bring the country together. Harmony and the integrity of the country is prime, and we are trying to bring all Indians together through introducing them to the language, culture, and literature of another state and another language. So even under this scheme, IGNOU has organized a number of programs. We are also planning many more. Courses are being developed under Ek Bharat Shresth Bharat, जिसमें हम ट्रांसलेट करके हम लोग अलग अलग भाषाओं में देने की कोशिश कर रहे हैं. और इससे क्या होगा? The country will come together and बहुत सारे ऐसे इस अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लेक्चर्स हम यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किए, जिसके अंदर हम लोगों ने जिन लोगों को बुलाया, जिन विद्वानों से बातचीत हुई, वो हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न भाषाओं के लोग थे. उन्होंने आके अपने अपने प्रांतों के बारे में, especially with regard to the freedom struggle. So there are so many heroes and heroines of the freedom struggle who are forgotten. So they came and they spoke to us about that. So that also is in many ways bringing India together. Now, what are we trying to do further? What is a roadmap that we have? So we are trying to go more and more online ताकि लोग बाग अपने मोबाइल फ़ोन पे कहीं भी बैठ के वो उसको एक्सेस कर सकें. We are also trying to bring more learners from all over the world into our circle of education. स्वयं कोर्सेज हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे मातृभाषाओं में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करें. And every week we think we should conduct 3 or 4 hours of lecture series on Indian languages. We would also like to develop short modules, जैसे छोटे छोटे capsules होते हैं on all the 22 languages जो हमारे schedule में है, just for the basic training. And also webinars, seminars, workshops, translations, ये करके organize करके हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा build and create awareness about other languages and cultures. And हमारे जितने भी MIL courses हैं वो सारे के सारे हम चाह रहे हैं कि हम online उसको बना दें, कोर्स बना दें. एंड जो IGNOU LMS है, जो हमारा जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसमें हम कोर्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन करें ताकि अगर मान लीजिए कोई केवल कन्नड़ा के कोर्स में अगर वो सिर्फ वही करना चाह रहा है तो हम उसको ये एक तरह का एक मौका हम प्रदान कर सकें.